Assalamu alaikum. This is the third video of series of videos regarding quick revision of chemistry. So, moving forward with stoichiometry, uh, first thing is formulae. Formulae of elements and compounds. As we have just discussed in the last class about how the ionic compounds and covalent compounds are formed and how we can write the chemical formula of ionic compound. Uh, so, those skills can be used uh, to write different elements and compounds formulas. Okay, so some elements as they are in the diatomic form like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, all the halogens, they are in diatomic structure. So those elements are written as a covalent molecule, like hydrogen is H2, oxygen is O2, nitrogen is N2, chlorine, bromine, iodine as Cl2, Br2 or I2. Then we have sulfur, carbon, which are in the group 4 of the periodic table, and usually they are forming uh, compound ions or oxides and other compounds. They are not usually present in um, pure form. Carbon is present in pure form in the form of giant ionic lattice. Okay, in the form of graphite and um, diamond. We have already discussed that. Next thing is iron and copper. These are metals, and there are other elements as well which are mentioned in the periodic table. Okay. Then common compounds, we have water, carbon dioxide, carbon monoxide, sodium chloride, sodium carbonate. Some acidic compounds are common like sulfuric acid, nitric acid, ammonium acid, and then we have methane as natural gas. So, and there are many others commonly used compounds, uh, both covalent and ionic compounds. So, you have to remember इन सबके आपको फॉर्मूलाज याद रखना तो मुश्किल है बट कुछ रूल्स आप अगर याद रखेंगे जैसे डाई ऑक्साइड तो अगर कोई भी आपको इस तरह का कोवलेंट कंपाउंड मिलता है इसका डाई लिखा हुआ उसका मतलब ये है कि डाई जिसके साथ भी लिखा हुआ है तो उसका उसके दो एटम्स होंगे लाइक डाई ऑक्साइड मीन्स दो टू एटम्स ऑफ oxygen. Monoxide means one atom of oxygen. Okay. In ionic compounds case, metals are usually written before non-metals. There's sodium chloride, calcium carbonate. Okay. So calcium, sodium, they are metal. तो वो पहले लिखे जाते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर. ठीक है, मेटल्स पहले लिखे जाते हैं. देन वी हैव एसिड. ठीक है, सल्फेट एंड अच्छा पॉलीएटॉमिक आयंस यू हैव टू रिमेंबर देम. ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस आपको याद होने चाहिए, उनके चार्जेस याद होने चाहिए. ठीक है, सल्फेट आयन पे क्या चार्ज है, नाइट्रेट आयन पे क्या चार्ज है, इसी तरह अमोनियम आयन पे क्या चार्ज है. देन वी हैव 6 या 7 हमने पढ़े थे. ठीक है, तो सारे पॉलीएटॉमिक आयंस याद होंगे तो यू कैन इजीली राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड बी इट आयनिक और कोई एसिड हो तो वो भी आप लिख सकते हैं. एंड कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो तो मतलब नो नीड टू रिमेम्बर द पॉलीएटॉमिक आयंस फॉर कोवेलेंट कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड के लिए पॉलीएटॉमिक आयंस आपको याद होने चाहिए. कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन इज CO4 2 negative, nitrate ion is NO3 negative, ammonium ion is NH4 positive. ठीक है, ये याद होना चाहिए. Then we have molecular formula. Molecular formula of a compound shows the actual number and type of atoms present in one molecule. ठीक है, molecular formula molecule के लिए होता है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक फार्मूला होगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज फॉर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड. these all are covalent compounds तो उनके मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. देन वी हैव एम्पिरिकल फार्मूला. अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था एटम्स एलिमेंट बहुत से केस में कि इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इट वो अभी फिर डिटेल में डिस्कस होगा इस चैप्टर के अंदर स्टिशियोमेट्री में. ठीक है, तो मैंने वहाँ बताया था कि स्टिशियोमेट्री में ये डिस्कस होता है, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है,
सो हाउ यू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसके लिए ऑब्वियसली यू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिपीटिशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास MR डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, ठीक है, और उससे नंबर ऑफ एम्पेरिकल मास, तो उससे नंबर ऑफ रिपीटिशन निकलती हैं, और उसको आप एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। सो वो उसका पूरा प्रोसीजर है। देन वी हैव डिड्यूसिंग फार्मूला ऑफ फ्रॉम मॉडल्स और डायग्राम्स। तो डायग्राम्स या मॉडल से किस तरीके से हम कर सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स shown in the diagram, write the ratio, simplify to the smallest whole number ratio, ठीक है। एग्जांपल्स हैं, to show that two sodium ion and one oxygen ion forms sodium oxide, ठीक है। तो इसका हमें कैसे पता चला कि हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्साइड आयन पे जो है वो नेगेटिव का चार्ज होता है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, उसके लिए हमें two sodium ions will be required and one chlor oxide ion will be required. Okay. Reducing formula of ionic compound using charges. अगेन मैंने जिस तरह बताया कि फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका मेथड किस तरीके से हो सकता है, राइट आयन सिंबल विद चार्जेस। स्टेप नंबर 1 में आप आयन सिंबल और चार्जेस लिख देंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखना है आपने तो सोडियम आयन लिख देंगे और क्लोराइड आयन लिख देंगे और उनके विद चार्जेस, ठीक है। और फिर क्रॉस ओवर द चार्जेस यानी क्रॉस में लिखेंगे, अगर Na+ है तो प्लस वन तो वन वन लिखा नहीं जाएगा, और Cl नेगेटिव है तो उसका भी अगेन वन है तो वन लिखा नहीं जाता, तो इट विल बी NaCl। बट ऑन द अदर हैंड इफ इट इज कैल्शियम क्लोराइड तो टू जो है वो क्लोराइड के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CaCl2। एल्यूमिनियम का जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम इज द ग्रुप 3 ऑफ periodic table, so एल्यूमिनियम हैज चार्ज B positive, and then we have oxide ion with the charge of 2 minus. So ये क्या होगा कि Al2O3 बन जाएगा ये, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो इसी तरीके से लिखा जाएगा MgNO3, and since nitrate is having a negative charge and magnesium is having a charge of 2 positive, so the nitrate ion, there will be two nitrate ion involved in this reaction in order to have balance charges in the total positive charge and negative charge must be equal, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप यूज करेंगे टू नाइट्रेट आयंस, ओके। सो इट विल बी Mg, एंड फॉर पॉलीएटॉमिक आयंस यू यूज ब्रैकेट, ठीक है। तो पॉलीएटॉमिक आयंस को अगर 2 3 या मल्टीपल पॉलीएटॉमिक आयंस शो करने हैं तो आप ब्रैकेट लगाएंगे अराउंड दोज पॉलीएटॉमिक आयंस, तो ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे उन्होंने नाइट्रेट आयन के साथ किया NO3 और ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया, ठीक है। Then we have word, symbol and ionic equations. Obviously जब आपको formula writing आ जाएगी, then you have to learn how to write word equation. Word equation तो खैर बहुत सिंपल होती है। then symbol equation, सिंबल इक्वेशन में जो मेटल होते हैं वो एज इट इज लिखे जाते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि डायटोमिक गैस है तो वो भी लिखी जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड सेंस, मैग्नीशियम इज मेटल एंड ऑक्सीजन इज नॉन मेटल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है बिकॉज इट इज इन ग्रुप 2, ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव का चार्ज होता है बिकॉज इट इज ग्रुप 6। तो टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 और 2, Mg2O2 बनना चाहिए था बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड, तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं तो ये MgO बन जाता है, ठीक है। यानी एक मैग्नीशियम आयन तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक ऑक्साइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इनका रेशियो क्या बना 1:1 का। यानी आयनिक बॉन्डिंग के अंदर एक 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 मैग्नीशियम एटम और एक ऑक्साइड ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। सो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, सिंपल इक्वेशन के बाद स्टेट्स, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मैग्नीशियम इज मेटल तो ये सॉलिड होगा, ऑक्सीजन इज गैस तो ये लिक्विड होगी, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज
अब एन आयनिक कंपाउंड तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है, ठीक है। तो इस सॉलिड के लिए हम एस यूज करते हैं, लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं, गैस के लिए जी यूज करते हैं। अगर कोई आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर बन रहा है, ठीक है, एक्वियस फॉर्म के अंदर बन रहा है, यानी डिजोल्व इन वाटर, तो उसको हम ए क्यू लिखते हैं, एक्वियस फॉर्म, ठीक है। ये एक और फिजिकल स्टेट होती है, इसमें आयंस आर डिसॉल्व इन वाटर, मीन्स मतलब बेसिकली आपने उनको मेल्ट नहीं किया, बल्कि उनके जो उनको आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर दिया, यानी मैग्नीशियम आयन अलग हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम आयन अलग हो गया, और क्लोराइड ऑक्साइड आयन अलग हो गया, ठीक है, ऑक्साइड आयन अलग हो गया। अच्छा, बाय द वे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो ये अलग अलग नहीं होंगे वाटर के अंदर, ये एक्वस कंडीशन में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके लिए सॉल्युबिलिटी रूल्स हैं जो लेटर ऑन हम उसको रिवाइज कर देंगे दोबारा, और यू गाइस ऑलरेडी नो अबाउट, ठीक है। चलते हैं आगे। सो आयनिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? आयनिक इक्वेशन की सैंपल यहाँ पे दी हुई है। Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव गिव यू सिल्वर क्लोराइड, AgCl2, AgCl सॉरी। अच्छा, ये क्या है? ये प्रेसिपिटेशन की एक आयनिक इक्वेशन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज अ सॉलिड, मतलब नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसकी प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो एक ऐसा आयनिक सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड जिसमें सिल्वर आयन हो, उसको आप मिला देते हैं किसी ऐसे सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड के साथ जिसमें क्लोराइड आयन हो, तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक इनसॉल्युबल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है, जो कि सॉल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज रिड्यूसिंग सिंबल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स, ठीक है। स्टेप वन, आइडेंटिफाई रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सिंपल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है? You have to identify reactant and product, write correct chemical formula, balance the equation. Equation balancing कैसे होती है? You guys have already studied about it. Add symbols, state symbols using given information. For example, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्टेंट हो गए, और प्रोडक्ट क्या हो गए? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट बाद में लिखिए, कभी कभी प्रोडक्ट पहले भी लिख देते हैं। जैसे वो बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उस केस में प्रोडक्ट पहले लिख दिया और रिएक्टेंट बाद में लिख दिया, एक्टिव पैसिव वॉइस का फर्क, ठीक है। सो यू गाइस मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ टू गेस कि ये यहाँ पे केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, ठीक है। तो उसका मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, रिलेटिव मासेस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन इज एन एवरेज मास ऑफ आइसोटोप एज वी डिस्कस मास स्पेक्ट्रोमीटर, और उससे जो हम रिलेटिव अबंडेंस के थ्रू एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वो एक एवरेज मास होता है ऑफ द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद 1/12 of the mass of carbon 12 atom. It has no unit and value are taken from periodic table, ठीक है। वैल्यूज इसकी पीरियोडिक टेबल से दी जाती हैं। इसका जो मास नंबर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो उसको हम न्यूक्लियन नंबर ही बोलते हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल से आप देख सकते हैं, एंड इट इज एवरेज, ठीक है। रिलेटिव फॉर्मूला मास ये यूज होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, यूज फॉर आयनिक कंपाउंड टू कैलकुलेट इन द सेम वे एज एम, ठीक है, कैलकुलेट इन द सेम वे एज एम। जैसे फॉर एग्जांपल कोवलेंट कंपाउंड के लिए वाटर जैसे फॉर एग्जांपल है, तो उसके लिए आपके पास जो एम आर होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, सो ये 2 हो गया, और ऑक्सीजन का है 16, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है 16, सो एम आर ऑफ वाटर इज 16 + 2 18, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का है 44। ये दोनों क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह फॉर्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड का होता है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट ओवर हियर, दीज आर आयनिक कंपाउंड, तो इनका क्या होगा? फॉर्मूला मास होगा। ऊपर वालों का ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये एम आर है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या है? फॉर्मूला मास, ठीक है। तो यूजुअली हम इसको भी एम आर के तौर पर कंसिडर कर रहे होते हैं, मगर इसको जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूला मास, एम आर नहीं लिखते इसका, ठीक है, एम आर की फॉर्म में नहीं लिखते। तो कैलकुलेशन के लिए हम बोलेंगे एम आर है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट एक्चुअली इट इज फॉर्मूला मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एम आर
ठीक है, वो हमने जैसे डिस्कस कर लिया। इज द सम ऑफ रिलेटिव atomic masses of all atoms in a molecule. ठीक है, ये this is for water and carbon dioxide and other covalent compounds. ठीक है, उनके लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यूज होता है, एंड फॉर सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड अदर ionic compound it is formula mass. Next is the mole and Avogadro's constant. अच्छा, the mole is the unit of amount of substances। ठीक है, एक यूनिट है, जिस तरह एक हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डजन यूज करते हैं। डजन एक यूनिट है ना, जैसे 1 डजन एग्स, 1 डजन बनानास, 1 डजन ऑरेंजेस। ठीक है, डजन एक यूनिट है जिसका जो बराबर होता है 12 के। इसी तरह एवोगैड्रो ये एक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि बराबर होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स है। ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। अच्छा, सब्सटेंस की बात किया तो इसमें वाई वी यूज द वर्ड सब्सटेंस, बिकॉज इट कैन बी अ कंपाउंड, इट कैन बी आयनिक फॉर्मूला, और इट कैन बी एन एलिमेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आयनिक फॉर्मूला भी हो सकता है, या प्योर एलिमेंट भी हो सकता है। तो उन सब के जो मोल्स कैलकुलेट होंगे, तो उनके अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका जो 1 मोल बनेगा, जैसे वाटर है H2, इसका जो 1 मोल बनेगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ वाटर इट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, इसका एन ए से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ओके। देन फॉर्मूला मास, अच्छा फॉर्मूलाज, मोल के फॉर्मूलाज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मोल को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक जनरल फार्मूला इसका हो गया, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि मोल की डेफिनेशन क्या है। इट इज द यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड 1 मोल कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा इसके अलावा 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो होता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो क्या होता है 24 डेसीमीटर। ठीक है, at RTP has volume of 24 डेसीमीटर। ठीक है, सो वॉल्यूम 24 डेसीमीटर। अच्छा, किसी भी गिवन सब्सटेंस के अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आपको पार्टिकल्स पता है और मोल्स निकालने हैं, तो पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, इक्वल टू के साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब मैथ्स की बेसिक है ये। ठीक है, यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट। ठीक है, पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोलर गैस वॉल्यूम दिया गया, मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे उन्होंने बात कर दी कि मोलर गैस वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप यूज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, so moles will be equal to volume of gas divided by in decimeter cube, volume in decimeter cube divided by 24। और अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो डिवाइड बाय 24,000 हो जाएगा। तो ये डिटेल हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। है, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन दो तरह की होती है विद रिस्पेक्ट टू मास, इस ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है। अच्छा, for molar concentration the formula is shown with the unit as well। ठीक है, जिस तरह का यूनिट है तो उससे वही फॉर्मूला पता चलता है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नेम इज सजेस्टिंग मोल है तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा ऊपर, पर डेसीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब से नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है,
देन वी हैव स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होती है? यूज टू कैलकुलेट रिएक्टिंग मासेस, लिमिटिंग रिएक्टेंट, गैस वॉल्यूम, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब डिफरेंट इसके पर्पज होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो यूज होती है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप इसको कंपेयर कर सकते हो एज अ रेसिपी ऑफ एनी डिश दैट यू लाइक और टी। ठीक है, तो ये एक रेसिपी होती है जिससे केमिकल रिएक्ट करते हैं और उस रेसिपी को यूज करते हुए आप दूसरी चीजें निकाल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल, वो आप लोग सब पढ़ी हुई है, बस ये थोड़ा सा आपको एक रिवीजन में है, इसको याद रखें। इफ यू आर एबल टू रिकॉल इट, इट्स वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, जस्ट गो थ्रू एंड रिवाइज इट एंड गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है। अच्छा, then titration is experimental data from titration is used to calculate unknown solutions concentration by mole ratios। molar ratio से आप यानी वही अगेन स्टोइचियोमेट्री यूज करते हुए आप अननोन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, या कहीं पर कोई सॉल्ट आपने बनाना है उसके वॉल्यूमेट्रिक रेशियो आपको, जैसे प्लानिंग का क्वेश्चन आता है उसमें आपको कोई सॉल्ट बनाना है, सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है यूजिंग सॉल्युबल रिएक्टेंट्स, तो यू यूज टाइट्रेशन। If you want to prepare soluble salt using soluble reactants, means base, soluble base or soluble carbonate with acid, then you can use titration। ठीक है। Then we have empirical formula। How we calculate empirical formula, again ये तीसरी दफा आ रहा है। ठीक है, पहले के ऊपर गुजर चुका है। Calculated from simplest whole number ratios of atoms in compound। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा? तो केमिकल एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन। अच्छा, ये बात ऊपर लिखी नहीं थी, नीचे उन्होंने डिस्कस कर ली, हमने ऊपर इस बात को डिस्कस कर ली। अच्छा, परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी, ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, परसेंटेज यील्ड कब यूज होगी? जब आपने इसके एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये है कि यू आर बर्निंग कोल। ठीक है, कोल को आप बर्न करने, कोयले को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, सो आपने इसका मास लिया, आप अज्यूम करते हैं कि कोल इज प्योर कार्बन। ठीक है, कार्बन का बना हुआ है, प्योर है, इसके अंदर कोई आपने वाटर और ऐश कंटेंट उसको किसी चीज को कंसीडर नहीं किया हुआ। तो आप कहेंगे कि सारा का सारा जो मास होना चाहिए कोल का वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मतलब उतने ही अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी चाहिए। आप कोयल के मास को लेते हैं और उसको कार्बन के एम आर से डिवाइड, सॉरी एटॉमिक मास से ए आर से डिवाइड करके यू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एंड यू कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी प्रोड्यूस, और उसको आप 24 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बट व्हेन यू मेजर द वॉल्यूम आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल, सो यू कम टू नो दैट जितना कोल बर्न होना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी। सो वेयर इज द मास लॉस्ट? तो उसको दो तरीके हैं देखने के। एक परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होगा कि आप कहेंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिएक्शन, क्या रिएक्शन में कंप्लीट पोल बर्निंग नहीं हुई, कुछ कार्बन यहाँ पे रह गई। ठीक है, सो उसको कहते हैं परसेंटेज यील्ड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अच्छा ये प्रोडक्ट की फॉर्म में होगी, यानी यू डिस्कस प्रोडक्ट ओवर हियर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म डिवाइड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपने कैलकुलेट की थी कितनी बननी चाहिए, एंड यू मल्टीप्लाई इट विद 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज यील्ड। और परसेंटेज प्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे? कोल के मास को लेंगे। ठीक है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है इसका कितना मास था? अच्छा, जो कि जिसने रिएक्ट किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सब। अच्छा, कुछ मास यहाँ पे रह गया होगा ना रिएक्ट करने से, तो आपने रिएक्शन से पहले कोल को मेजर किया, उसका मास मेजर किया, और उसके बाद आपने रिएक्शन के बाद मास मेजर किया। सो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मास, यानी जो ओरिजिनल मास है वो यहाँ पे आएगा बिफोर रिएक्शन, एंड मास ऑफ प्योर सब्सटेंस जो कि जिसने रिएक्ट कर लिया है। ठीक है, तो दैट विल बी मास लॉस। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे? वो स्टोइचियोमेट्री से नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनसे रिवर्स कैलकुलेट करके कार्बन का यहाँ पे मास निकालोगे कि एक्चुअली कितना कार्बन यूज हुआ इस रिएक्शन में। ठीक है, और उससे आप यानी परसेंटेज यील्ड इन सिंपल वर्ड इज प्रोडक्ट सेंटर्ड, प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, एंड परसेंटेज प्योरिटी इज
रिएक्टेंट सेंटर। ठीक है, रिएक्टेंट को देखो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ये कैसे निकलती है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होती है वो रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, डिवाइड बाय एम आर ऑफ अ कंपाउंड। अगर मैं बोलूँ कि वाटर में मुझे हाउ मनी व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, ठीक है। सो मैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसे, दो एटम हाइड्रोजन के इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर। सो वन इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वन मल्टीप्लाई बाय टू, तो टू आ जाएगा ऊपर। एंड नीचे क्या आ जाएगा? टोटल एम आर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 18, एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विद 100, so you get percentage of hydrogen in water। ठीक है, ओके, दैट वाज इट। ये क्विक रिवीजन था हमारा स्टिशियोमेट्री से रिलेटेड। आई होप you guys must have been able to recall all the stuff that we have already studied. अगर still कोई confusion है, you are more than welcome to ask me।